はい、どうも皆さん、チームチャンネルのチームでございます。今日もこの動画をご覧くださって本当にありがとうございます。このチャンネルを登録いただいた方へ、チャンネルを登録いただいて本当にありがとうございます。じゃあ、今日はですね、日本語でビジネスメールを書き方の最初の動画でございます。先日はですね、日本語でビジネスメールを書きたいなら、重要な点についてご紹介しました。でも今日はですね、論理的に言うと、今日はですね、ビジネスメールの書き方について最初の動画でございます。じゃあ、それでは始めましょう。Hey everyone, this is Chinmay from Chinmay's channel. So, this is the first video, like technically this is the first video for how to write business email in Japanese. The first video was about क्या पॉइंट्स हैं टू रिमेंबर, किन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है इफ़ यू वांट टू राइट बिजनेस ईमेल इन जापानीज. तो फर्स्ट वीडियो बहुत बेसिक सा था, बहुत बेसिक से पॉइंट्स थे अबाउट बिजनेस जापानीज में मेल लिखने के लिए. बट लाइक लॉजिकली दिस वीडियो इज़ the first video of how to write business email in Japanese. So yeah, so let's get started. So शुरू करते हैं इस वीडियो को. सो दिस इज पार्ट 2 एंड एज आई सेड इन द लास्ट वीडियो कि नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिक टर्म्स एंड क्या होती है एक बिजनेस ईमेल लिखने के लिए जापानीज़ में, लाइक बेसिक सी जो टर्म्स होती है कि ईमेल के सब्जेक्ट सीसी, बीसीसी और सेंडर और बेस्ट रिगार्ड्स और ग्रीटिंग्स एंड और इस वीडियो में आई विल इंट्रोड्यूस ए सैम्पल ईमेल ऑल्सो, लाइक ए सैम्पल बिजनेस ईमेल इन जापानीज़. दिस इज़ अ सैम्पल बिजनेस ईमेल इन जापानीज़. सो इसको भी हम पढ़ेंगे. इसको आई विल एक्सप्लेन द टर्म्स एंड ये जो भी कुछ यहाँ लिखा हुआ है सब कुछ, उसकी ग्रामर या वोकेबलरी, ईच एंड एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन. सो इफ यू विल वॉच दिस वीडियो टिल एंड 最後までに見てくれれば本当に嬉しいです。If you will watch this video till end, I'll be happy. And at the end, I will explain what is Sonkeigo and Kinjogo, as I said in the last video. That in the next video, I'll explain what is Sonkeigo and Kinjogo. So I will explain that too, because Sonkeigo और Kinjogo का पता होना बहुत ज़रूरी है. Okay. So, 先日はですね、日本語でビジネスメールの書き方についてご紹介させていただきました。今日はですね、日本語でビジネスメールを書けるように重要な言葉とかですね、重要な言葉についてご紹介させていただきます。とですね、日本語でビジネスメールを書くときにどんな言葉は重要な言葉なのかっていうことについてご紹介させていただきます。それでは始めましょう。日本語でビジネスメールを書けるように重要な言葉はこちらの方です。So these are the terms which is important if you want to write business email in Japanese. So 日本語でビジネスメール、ビジネスイメール in Japanese を書けるように to be able to write. 書ける can write ように to be able to write. 重要な important 言葉 words なこちらの方です。Here. Like this is the polite way to write, like these are the information. और जब भी हमको कहना हो कि like किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ है, like こちらの方です。यहाँ है. Like this is the information about anything. So this is a way to say like こちらの方です。なんとかなんとかこちらの方です。So सबसे पहले सब्जेक्ट. So सब्जेक्ट को इसमें कहते हैं खेमेई, खेमेई はですね、खेメイというのは目的ということです。目的というのは purpose とか aim とか intention とかビジネスの purpose とか aim とか objective とか intention
とかね、目的。じゃあ、件名というのは目的ということですね。メールの内容のタイトルです。これは内容。内容がमतलब होता है content. So basically this is the title、メールの内容のタイトルです。タイトル。内容のタイトル。So title of the content of the mail. メールの内容。メールの内容のタイトルです。件名のことが絶対忘れべきではありません。忘れないようにしてください。So the meaning of this line is this is very extremely important thing in a business email. Like in any business email, subject is very important, title is very important. But in like एक बार को अगर इंग्लिश वाले मेल में अगर आपने मिस भी कर दिया कुछ हो गया तो आई डोंट नो कि कितना इफेक्ट पड़ेगा. बट इन जापानीज बिजनेस ईमेल्स बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है. इसका बहुत बड़ा बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है अगर आपने सब्जेक्ट नहीं लिखा तो. अगर इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द अदर पर्सन. अगर अदर जो जापानीज़ है जो कि मेल को पढ़ेगा वो किससे कैसे रिएक्ट करेगा वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन. सो इट माइट बी बिग मिस्टेक टू मिस दिस सब्जेक्ट. सो 件名のことが絶対 like definitely 忘れべきではありません。べきではない。べき as a grammar pattern. The dictionary form of the verb plus べき like should do that verb or you like it's very strong suggestion kind of order. So be 忘れるべきではありません。You should not be you should not forget to write the subject of the mail. And 忘れないようにしてください. Please do not forget to write this. Then the thing is receiver, then receiver or the address of the receiver or the destination जहाँ हमको email भेजना है. So receiver address इन terms को हम कहते हैं. ऐसे तो बहुत सारी terms होती हैं but usually जो most used term है that is 宛先. 宛先というのは受信する人のメールアドレス。これは受信する。受信का मतलब होता है receiving, जो to receive something. So 受信する人 here's a direct noun modification. 受信する is a verb and इसको हमने हितो noun add किया. So this is direct noun and verb modification. So 受信する人 the person who will receive the mail. So 受信する人のメールアドレス the mail address of the person who will receive the email. 宛先というのは差出人これは差出人ですね。差出人というのは the person who is writing the email or the sender of the email like यहाँ जो लिखा हुआ भी है sender 差出人 so 宛先というのは差出人のメールを受信する人ということです。差出人のメール the mail of the sender will received by 受信する人ということ will received by that person who is 宛先 so 宛先というのは like this is the grammar pattern in Japanese to express to explain something というのは like noun plus というのは to explain that thing so 宛先というのは差出人のメールを受信する人ということですよ。メールをもらう人ってこと。メールをもらう人。もらう is to mean to receive something. メールをもらう。receiving a mail. メールをもらう人ってこと。It is shorthand for writing to you. So メールをもらう人ということですね。Then CC and CC basically same as English. इसमें कोई चेंज नहीं है. जो इंग्लिश मेल में जो या भी बेसिकली एक मेल में जो मतलब होता है CC का वही मतलब BCC और BCC का मतलब सेम होता है. जापानीज मेल में कोई चेंज नहीं है इसमें एज इट इज़ जो इंग्लिश का मतलब होता है वही है. सो दिस इज सेम एज इंग्लिश वन. बट अगर इसको हम जापानीज में अगर मैं इसका एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ फॉर योर जापानीज प्रैक्टिस लाइक यू कैन एक्सप्लेन दिस CC इन जापानीज. अगर आप करना चाहें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई आई रोट दिस. That's why I wrote this. So 日本語で言うと、宛先の人以外にも見てもらいたい人のメールアドレスを入力します。ね。入力 is to type something. It's 入力。入力。So the correct pronunciation is 入力。日本語で言うと、宛先の人以外にも見てもらいたい人のメールアドレスを入力します。例えば、宛先に部長、like 宛先に部長、like in the place of 宛先、like the receiver、宛先
वहाँ लिखना है हमको बूचो, लाइक नीज टू आते साकी नहीं बूचो, वहाँ लिखा बूचो। शिशी नहीं बूचो नो हिशो नो मेरू एड्रेस वो न्यूरेकु शिमासु। हिशो इज होता है सेक्रेटरी ऑफ दैट, बुचो इज लाइक प्रेसिडेंट, आई थिंक, या प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ही होना चाहिए, या मतलब बेसिकली सुपीरियर होता है, द सीनियर पर्सन, हेड, शेफ, चीफ डायरेक्टर सेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट, या प्रेसिडेंट, काइंड ऑफ प्रेसिडेंट थिंग, या ओके। सो आतेसाकी ni bucho shishi ni bucho no hisho no meal addressを入力します。もうちょっと簡単に説明してみると、部長に送っているメールを秘書にも見てもらいたいことですね。そういう状況の時に獅子を使います。बेसिकली इस लाइन का मतलब होता है कि थोड़ा अगर और मोचो तो खानदान नहीं क्षेत्र में शुरू तो अगर थोड़ा और इजीली एक्सप्लेन करने को ट्राई करूं तो बुचो नहीं को तेरु मेल, जो मेल हम सेंड कर रहे हैं बुचो को, बुचो नहीं ओकोतेरु मेरु, अगेन दिस इज डायरेक्ट वर्ब एंड द नाउन मॉडिफिकेशन. Verb and noun modification is very important in Japanese. Most of the time you have to use this or you will encounter this kind of thing like verb plus noun. So bucho ni okoteru meru o हिशो नी सेक्रेटरी नी हिशो नीमो सेक्रेटरी के लिए भी मिते मोराइताई का मतलब होता है, दिस इज द ग्रामर पैटर्न ऑफ लाइक थे, वर्ब का थे फॉर्म प्लस मोराउ, लाइक टू गेट समथिंग फॉर यू बट डन बाय सम अदर पर्सन, लाइक किसी और से आप, लाइक जब कोई और आपके लिए कुछ करता है और आप किसी और से कुछ चाहते हैं करवाना फॉर यू, देन इज लाइक थे फॉर्म प्लस मोराउ. इसका एक और पैटर्न होता है थे फॉर्म प्लस इतादाकु, दैट इज इतादाकु इज केंजोगो ऑफ मोराओ, वो हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा डीपर नॉलेज है. सो फॉर नाउ हिशो निमो सेक्रेटरी के लिए भी या फिर सेक्रेटरी को भी मिते मोराइताई वी वांट सेक्रेटरी आल्सो टू सी दैट मेल, इसका मतलब ये होता है मेरे बुचो नि ओकोतेरु मेल ओ हिशो निमो मिते मोराइताई कोतो देसु. सोいう状況の時に in such situation 状況 is situation 状況そういう状況の時に獅子を使います。BCC this is also same as the English one, so इसको अगर जापानी में ट्रांसलेट करेंगे तोこれはですね重心した人、重心होता है द पर्सन, या मैंने इसको एक्सप्लेन किया था यहाँ पे重心する人क्या होता है. so 重心した人は重心した人は the person who will receive the mail or who received the mail 他に誰かが受信しているのかっていうことがわからないということですね。इस लाइन का मतलब है कि okay, 他に誰かが like the person who received the email, like suppose बूचो, like जहाँ पे जो कि रिसीवर है, आते सा की जो पर्सन है, 他に誰かが else like और लाइक होकन इज और दारेका का कौन जूशिन शितेरु, और किस किस को मेल मिल रहा है और कौन कौन उस मेल को रिसीव कर रहा है. इसका मतलब ये है कि जूशिन शितेरु होका नहीं दारेका का जूशिन शितेरु नो का थे यू कोतो गा वकारा नहीं ते कोतो. एक आते सा की जो पर्सन है, जो मेन इसका रिसीवर है, अगर आपने बीसीसी में कुछ लिखा है तो इस रिसीवर को, बिकॉज ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो इस रिसीवर को नहीं पता चलेगा कि और इसके सिवा और कौन कौन वो मेल को रिसीव कर रहा है. बेसिकली दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस लाइन. 受信した人は他に誰かが受信しているのかっていうことがわからないっていうことです。Please try to translate this line in Japanese and then match. अगर आपने भी सेम ट्रांसलेट किया है जैसा मैंने किया है तो ठीक है, अगर कुछ डिफरेंट भी होता है तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट. आई विल ट्राई टू करेक्ट योर ट्रांसलेशन अगर गलत है तो, क्योंकि अलग अलग वेज हो सकते हैं कहने के. सो या そもそも宛先の人はそもそも is after all originally, so そもそも宛先の人は差出人、これ差出人のメールアドレス以外他のメールアドレスを見えないことです。सो इस लाइन का मतलब है कि आफ्टर ऑल द आतेसा की जो पर्सन है जो कि इसका रिसीवर है, sashidashinin sender, sashidashinin no मेल address, the email address of the sender
इगाई के अलावा होका नो मेल एड्रेस कोई और ईमेल एड्रेस ओ मिएनाई नहीं देख सकता या नहीं देख पाएगा. ओके, सो मो सो मो 宛先の人は差出人のメールアドレス以外他のメールアドレスを見えないことです。Okay. So just try to translate all of your English like CC और BC का definition English और Japanese में translate करने का try करो and then match that with this कि कितना सही किया है आपने because that's like this way you can practice the Japanese. इसलिए मैं Japanese भी लिखता हूँ English translation का. एंड एंड में द बेस्ट रिगार्ड्स लाइक योर सिंसियरली योर फेथफुली योर ऑबिडेंटली जो भी लिखते हैं इंग्लिश में तो उसको जापानीज में कहते हैं इकेगु. तो उसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, बस आपको सिर्फ इकेगु लिख देना. इसका मतलब होगा, मैं आपको दिखाई देता हूँ, उसका मतलब होगा वही होगा जो मैंने कहा है कि इकेगु जो इकेगु नहींこれあなんだろうな。ちょっとおかしい。あそこの方、おかしいな、本当に。はい。出てきた。इके गु योर सिंसियरली योर ट्रूली सिंसियरली सो इसको सिर्फ ये लिख सकते हैं, वैसे लिखते तो नहीं है बट इसकी जगह क्या लिखते हैं वाली टेल यू. सो या दिस वाज द टर्म सब्जेक्ट रिसीवर सीसी बीसीसी सब्जेक्ट खेमे receiver address is Atesaki Bichichi, sender is Sashida Shinin. Okay, so from here lead this sample business email in Japanese. So ये sample business email है, इसको हम पढ़ते हैं, then I'll translate, then I'll explain Kenjogo and Sonkeigo. So this is the business email in Japanese. Okay, Kemei subject. Okay, Kemei ये सब्जेक्ट है, अगेन इसका कांजी लिख देता हूँ. ओके, खेमे सब्जेक्ट. तो द सब्जेक्ट इज छोसा बुनसेकी नो मातोमे गा ओकुरेते इमासु. चिगाओ. हाई. छोसाई बुनसेकी इज बेसिकली एनालिसिस और छोसा इज सर्वे. So the analysis of the survey. So chosa bunseki no matome ga okurete imasu. Matome is the summary of something. So an okure is a verb to for delay. So okurete imasu is being delayed or late हो रहा है. So इसका मतलब होगा कि छोसा बुनसेकी नो matome the summary of the छोसा बुनसेकी survey analysis की जो summary है वो हो रही है late. तो ये subject है. तो basically this is a लाइक लाइक नोटिफिकेशन ईमेल कि सामने वाले को ये बताया जा रहा है कि जो छोसा बुनसेकी सर्वे एनालिसिस की जो समरी जो है सर्वे एनालिसिस की वो लेट होगी या लेट हो रही है. जो भी डेडलाइन वगैरह दिया होगा वो आगे इसमें कि डेडलाइन दिया था कि नहीं दिया था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट इस तरह से लिखना है, लाइक सब्जेक्ट बहुत ही क्लियर होना चाहिए, बहुत कॉन्क्रीट होना चाहिए जिससे कि सबको समझ में आ जाए आराम से. दैट शुड बी द सब्जेक्ट. छोसा बुनसेकी नो मत शॉर्ट एंड स्वीट, शॉर्ट एंड बट वेरी इन्फॉर्मेटिव. सो छोसा बुनसेकी नो मतोमे गा ओकुरेते इमासु. जैसे कि इसने सुगिवा मारुमारु खाइशा इस खांजी फॉर कंपनी खाइशा. सो मारुमारु खाइशा, मारुमारु जापानीज में लाइक ब्लैंक स्पेस जहाँ पे कुछ लिखना हो, लाइक यहाँ पे कंपनी का नाम आएगा तो मारुमारु खाइशा. देन उसके बाद जिस पर्सन को आप मेल लिख रहे हो दैट रिसीवर, ठीक है, ईमेल एड्रेस तो ऊपर आ गया, उसके बाद आ जाएगा देन सब्जेक्ट, देन यहाँ पे अगेन मारुमारु खाइशा उसकी कंपनी का नेम, देन उस पर्सन को जिसको आप एड्रेस कर रहे हो. ये ज़रूरी लिखना जापानीज में. इट्स नॉट लाइक कि ऊपर मेल एड्रेस लिखा है तो उसको पता है, नहीं पता है से फ़र्क नहीं पड़ता. इन जापानीज आपको दोबारा लिखना पड़ेगा क्योंकि जापानीज ईमेल में आपको फॉर्मेटिंग का और सामने वाले को लाइक जापानीज ईमेल लिखने बिजनेस जापानीज में ईमेल लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये सोच के ईमेल लिखना होता है कि सामने वाले को उसको समझने में कम से कम दिमाग लगाना पड़े. लाइक बहुत ही क्लियर, इंफॉर्मेटिव और इजी टू रीड, इजी टू अंडरस्टैंड वाला टाइप होना चाहिए आपकी ईमेल का. क्योंकि जापानीज़ जो अदर पर्सन है, अगर आपका क्लाइंट है या सीनियर पर्सन है तो बहुत जल्दी इरिटेट हो सकता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग हो सकते हैं. और सो इन जापानीज़ जब भी जो कंपनी में जापानीज यूज़ होती है लाइक बिजनेस जापानीज़ जो होती है वो उसको बहुत ध्यान रखा जाता है उसमें कि कोई गलती ना हो या सही हो.
क्योंकि जब जापान में सीनियर इज़ लाइक गॉड, कस्टमर इज़ लाइक सीनियर से भी ज़्यादा गॉड, सो आपको बहुत केयरफुल, बहुत प्रिसाइज होना पड़ता है। सो लाइक यहाँ पे मैंने स्पेसिस बहुत दी, सो स्पेसिस यूँ ही नहीं दी, इनका मतलब है लाइक आपको इस बहुत क्लियर, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन रखना है अपने ईमेल को। तो सब्जेक्ट के बाद ये सबसे बेसिकली कॉलम में होता, तो ये नहीं आएगा। उसके बाद मारू मारू कहिशा, जिसको लिख रहे हैं जाके यहाँ पे खुरीता सामा, सामा इज द रिप्लेसमेंट ऑफ द सान, सान का जो खीगो वर्जन है, खीगो लाइक ऑनरिफिक जो वर्जन है दैट इज सामा, सो खुरीता सामा। उसके बाद एक स्पेस, देन आपका दिस इज द ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग जापानीज में बहुत ज़रूरी है, लाइक दिस लाइन हैज़ टू बी देयर इन एवरी बिजनेस जापानीज ईमेल। अगर आप कस्टमर को लाइक डिपेंड्स, अगर आप कस्टमर को या लिख रहे हो मोस्ट ऑफ द टाइम, या अपने सीनियर को लिख रहे हो, तो आपको लिखना ही पड़ेगा इत्सुमो उससे नाते उड़ी मस। इसका और एक पोलाइट वर्जन होता है इत्सुमो, इत्सुमो ताई हैं ताई, इत्सुमो ताई उससे नाते उड़ी मस, like I'm always serving for you. Itsumo is always, o sewa ni natte orimasu, o sewa is like to serve, ni natte orimasu, natte to become, like to become, to serve you always। मैं हमेशा, इस बेसिकली इसको कहे तो एक बहुत ही पोलाइट वे में आपने कहा है कि हम हमेशा आपकी सेवा में तत्पर हैं, अब हम हमेशा आपको सर्व करने के लिए रेडी हो, सर्व कर रहे हैं। नाते ओडिमस यहाँ पे आना चाहिए था नाते इमस, एंड बिकॉज इन बिजनेस जापानीज यू रिप्लेस योर इमस विद ओडिमस। ओके, तो इन बिजनेस जापानीज में आपका जो ईमास है वो रिप्लेस हो जाएगा ओडिमस से, ठीक है। सो यहाँ पे नॉर्मल जापानीज में शुड बी नाते नातेइमस, और इट इज एक्चुअली सेम एज नातेइमस, बट इन बिजनेस जापानीज यू हैव टू राइट ओडिमस, नाते ओडिमस। देन यामादा शोजी नो यामादा देस, देन यहाँ पे इसमो ओसोई नाते ओडिमस के बाद आप जो पर्सन लिख रहा है उसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन कि वो कौन है। तो यामादा शोजी, शोजी इज लाइक फॉर अ कमर्शियल अफेयर और लाइक कंपनी, लाइक कंपनी काइंड ऑफ थिंग। तो यामादा शोजी मे बी इसके डिपार्टमेंट या नॉट डिपार्टमेंट, बट इसका जो कमर्शियल अफेयर जो कंपनी है उसका टाइटल लगे यामादा शोजी, नो यामादा दिस। तो आई एम यामादा फ्रॉम यामादा शोजी, और यहाँ पे दिस शुड बी, it might be or should be de gozaimasu। ये सैम्पल मेल में मे बी एक अपने सीनियर को लिखा, इसलिए इसमें इतना ज़्यादा पोलाइट नहीं है, बट कस्टमर को लिखते वक्त यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज एंड पोलाइट। सो दिस कुड बी दे गोजाइमस, दैट इज़ वेरी वेरी पोलाइट। सो यामादा शोजी नो यामादा दे गोजाइमस, या फिर यामादा शोजी नो यामादा दिस इज इक्वल, देन स्पेस। ये फॉर्मेटिंग ऐसे ही रखनी लगेगा अपने अपने अकॉर्डिंग, मेल शुड बी वेरी प्रिसाइज। बट एक और ध्यान रखना है कि जो कनेक्टेड लाइन्स है वो साथ में ही हो, ऐसा ना हो कि कनेक्टेड लाइन्स में स्पेस, तो फिर वो समझने में मुश्किल होगा। बेसिकली द मोटिव इज कि समझने में बहुत इजीली अच्छे से आ जाए। देन ओके, द नेक्स्ट लाइन इज, इसको मैं कर देता हूँ हाईलाइट, एंड ओके देन Konshumatsu, Konshumatsu is this weekend. Konshu is this weekend. Matsu is uh, end of a time. Like Konshumatsu, Gitsumatsu, this end of this month. So like Konshumatsu ga, basically ga is ga जो पार्टिकल यहाँ पे उसका यूज सब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए किया गया है, लाइक उसको एम्फसाइज करने के लिए बेसिकली। मैं हर एक सेंटेंस में यूज़ हुए हर सेंटेंस में यूज़ हुए हर एक वर्ड या पैटर्न, ग्रामर या उसका पूरा मीनिंग एक्सप्लेन करता हूँ, बट आई डोंट थिंक ये ज़रूरी है, बट ठीक है, इट्स ओके, लाइक इट्स आई लाइक टू डू दिस बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ एग्जाम्पल सेंटेंस का मतलब ही नहीं, उसमें हर एक वर्ड जो लिखा हुआ है उसका एग्जैक्ट लॉजिक, लाइक लॉजिकली उसका रीज़न पता होना चाहिए क्यों यूज़ हुआ है। सिर्फ यूज़ हो गया या कर लिया वाला काम नहीं, वो इंस्टीट्यूट्स में होता है, वो आई डोंट लाइक दैट, दैट्स व्हाई। सो खुनशुमत्सु गा शिमेकिरी तो नात्तेरु chosa bunseki no matome desu ga, then shukei sagyo ga okurete orimasu. Okay, so konshumatsu ga shimekiri to natteiru chosa bunseki no matome desu ga, इस लाइन का मतलब है कि जो ये कि दिस वीकेंड और द एंड ऑफ द
दिस वीक जो है वो डेडलाइन थी या डेडलाइन है छोसाबुन से की सर्वे के एनालिसिस की जो समरी है उसकी डेडलाइन जो है वो दिस वीकेंड थी. Konshimatsu ga this weekend. Shimekiri is like deadline of something. Shimekiri to natteru. Becoming deadline. It's natteru basically shimekiri यहाँ पे एक as a noun use हुआ है shimekiri तो, and in normal Japanese it should be like it might be shimekiri ni natteru, but in written Japanese basically there is a pattern like ni naru, बट वो लिखते वक्त हो जाता है थो नारू. कोई फ़र्क नहीं है, सेम है, पर जब हम बोलते हैं तो इस नी नारू, और लाइक नॉर्मल जापानीज में इस नी नारू, बट बिजनेस ईमेल से थो नारू. सो 今週末とか締め切りになっている調査分析のまとめですが、集計作業が遅れています。ठीक है, 作業 is like to work, 作業 work और टास्क गा 遅れています. So बेसिकली यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि कंज्यूमर्स होगा ये जो वीकेंड है वो डेडलाइन थी या डेडलाइन है छोसा बुनसेकी के समरी की, बट वो लेट हो रहा है. ठीक है, अगर इसका अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग मीनिंग मैं दिखाऊं, सोちょっと待って、めんどくさいかな。はい。शू के टोटलाइजेशन एग्रीगेशन इज लाइक बेसिकली इसका बहुत ही अजीब मीनिंग दिया है इसने, छोड़ो. Basically, showcase sagyo is like total work. ठीक है, the completion of something, like total summing up of something. Sagyo is work. Sagyo work, operation, manufacturing, fertility. So work. So showcase sagyo ga okurete imasu. So आपका जो भी काम था जिसकी डेडलाइन ये वीकेंड थी वो लेट हो रहा है. ना तो ध्यान वाली चीज़ ये कि किस तरह से सेंटेंस को फ्रेम किया है, क्योंकि बिजनेस जापानीज में आपको सेंटेंस फ्रेम करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको सेंटेंस फ्रेम किन वर्ड्स को यूज़ करके अपने फ्रेम किया. आपका सेंटेंस कभी भी हैवी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑर्डरिंग नहीं होना चाहिए, हमेशा एक रिक्वेस्ट वाला चीज़ होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस ईमेल्स में जो जापानीज में होते हैं उनमें बहुत बार सॉरी और थैंक यू हो जाता है, और आपको अपने आप को कोई भी सामने वाले से सुपीरियर या अबव ऊपर नहीं दिखा सकते. यू हैव टू बी वेरी 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 पोलाइट, स्वीट एंड डाउन टू अर्थ while talking in business Japanese and while writing business emails in Japanese. आपका सेंटेंस कभी भी ऑर्डरिंग बहुत ज़्यादा ऑर्डर वाला नहीं होना चाहिए. इवन वो ऑर्डर है तो भी आप कुछ ऐसे वर्ड्स, ऐसे ग्रामर पैटर्न चूज करने जिससे ऑर्डर ना लगे. ओके, एंड अगेन ओकुरेते ओरिमास, इट शुड बी ओकुरेते इमास, बट बिकॉज इट्स बिजनेस जापानीज इट बिकेम ओरिमास. देन गेंजाई इज, गेंजाई का मतलब होता है करंटली, नाउ, अभी का जो सिचुएशन चल रहा है, दैट इज गेंजाई. गेंजाई Sagyosha is labor. Yeah, Sagyo is work, Sha is labor. Sagyosha o zoin shite zenryoku de susumete orimasu ga. इस लाइन को हम एक लाइक इस वन फ्लो अगर रीड करेंगे तो इट्स लाइक गेंजाई साग्योशा ओ जोइन शिते zenryoku de susumete ओरिमासुが期日までに全てを完成させるのは難しい見通しです。大変申し訳ありません. तो इस लाइन का मतलब है गेंजाई अभी जो है, अभी करंटली, साग्योशा ओ जोइन शिते, साग्योशा वर्कर्स, जोइन शिते का मतलब होता है टू वी आर हायरिंग समथिंग, लाइक नॉट समथिंग, वी आर हायरिंग वर्कर्स. जोइन सिरु लाइक टू हायर workers or to recruit like for jobs. So sagyosha o zoin shite zenryoku is full power, like it basically मतलब कि we are doing our best, we are hiring new staff and we are doing our best susumete to proceed your work. susumete orimasu ga. So in the form Japanese is usually used to connect to senses, और इसका एक और यूज़ होता है कि यूज़ होती है कारण को शो करने के लिए, लाइक रीज़न को शो करने के लिए. सो गेंजाई करंटली साग्योशा ओ जोइन शिते zenryoku de susumete orimasu ga खिजित्सु मादे. खिजित्सु इज लाइक द सेटल्ड डेट, फिक्स्ड डेट, जो भी आपने डेट दी है किसी को, दैट इज द काइंड ऑफ डेडलाइन थिंग. खिजित्सु मादे नि सुबेते ओ द कंप्लीट
सुबेते लाइक कंप्लीट सुबेते हो, इट्स सुबेते का कांजी यहाँ शिट ओके, इस सुबेते का कांजी यहाँ पे, दैट इज दिस कांजी सुबेते कांजी, लाइक व्हेन यू राइट सुबेते इन कांजी, तो ये सुबह की जगह ये कांजी आ जाएगा। सो और ये कांजी होता है चिकारा पावर का। सो सुबेते का कांजी प्लस चिकारा कांजी, ये दोनों मिलके बनता है जेनरेको। जेनरेको का मतलब होता है कंप्लीट पावर, पूरी पावर के साथ, लाइक बेस्ट। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ कांजी। आप कांजी देख के मतलब बना सकते हैं अगर वो नहीं पता है तो भी। सो खांसी सासेरू नोवा, खांसी लाइक टू कंप्लीटिंग समथिंग, टू कंप्लीशन ऑफ समथिंग, और यहाँ पे यूज हुआ है सासेरू नॉट सारेरू। सासेरू इज लाइक, तो यहाँ पे लाइक वी आर डूइंग और बेस्ट वेल हायरिंग न्यू स्टाफ, बट उन स्टाफ को लाइक सासेरू मेक समवन टू डू समथिंग। सो खांसी सासेरू नोवा टू मेक द स्टाफ टू कंप्लीट द वर्क बाय द डेट, जो कि फिक्स डेट है। मुजुकाशी मुश्किल है, मुजुकाशी मितोशी देस, मितोशी इज लाइक पर्सपेक्टिव व्यू, लाइक मुजुकाशी मितोशी इज लाइक हमें लगता है कि ये मुश्किल है फिक्स्ड डेट तक सारा काम कर देना, जबकि हम नया स्टाफ हायर करके अपना बेस्ट कर रहे हैं। सो इसका कंप्लीट ट्रांसलेशन, क्योंकि बेसिकली अगर आपको इसको हिंदी में कहा जाए कि आपको ये लिखना है जापानी, तो आपको लाइक ऐसे कहा जाएगा कि ओके राइट लाइन इन जापानीज कि अभी हम नया स्टाफ हायर कर रहे हैं और हम हमारा लाइक वाइल हायरिंग न्यू स्टाफ वी आर डूइंग आवर बेस्ट, बट स्टिल it seems like difficult to complete your work till the fixed date or by the fixed date, क्योंकि आपका फिक्स टाइम था तब तक वो काम करना मुश्किल है। सो कि जो क्योंकि आपको ऑब्वियसली हिंदी या इंग्लिश से जापानीज में ट्रांसलेट करेंगे तो उस वक्त आपको इस परफेक्ट रिजल्ट तक पहुंचने के लिए पता होना चाहिए सेंटेंस फ्रेम कैसे करना है। दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन जापानीज। ओके, 現在作業者を増員して全力で進めておりますが、実装までに全てを完成させるのは難しい見通しです。大変申し訳ありません。大変 is whenever you like being very like it's like very sorry. 申し訳ありません。There is a way to say like I'm really sorry or sorry for inconvenience. 申し訳ありません and it could be, ये हो सकता है मोशिवाके गोजाइमासेन. This is the polite version. The मोशिवाके गोजाइमासेन is more polite version of मोशिवाके आरिमासेन. Okay, like when you are writing this to customer, then write मोशिवाके गोजाइमासेन. तो ताइए मोशिवाके गोजाइमासेन का मतलब होता है like you are feeling very sorry. और when like जब आप बोलते हो जापानीज, बिजनेस जापानीज, then you should put weight on this, like हुन तो नहीं ताही मुझे गोजाइमासेन. आपकी टोन में, आपकी आवाज़ में लगना चाहिए कि आप यू आर फीलिंग, और वो जापानीज करते हैं, ये जापानीज लोग ये चीज़ करते हैं. सो यू वांट टू डू लाइक हमको भी करना है अगर हम एक अच्छे लेवल का जापानीज बोलना चाहते हैं तो. सो ताही मुझे के आरिमासेन, वी आर रियली सॉरी फॉर दिस. फॉर व्हाट दिस, देन स्पेस, बात खत्म होगी, देन स्पेस. राइशियो निचिजू निची नि वा ratio like next week, ratio nichiji nichi ni wa kanryo is completion, kanryo dekiru mitoshi desu ga, again mitoshi perspective, like we think aisa hoga. This kanji of miru to see का kanji है, and this kanji of thori like to follow something. So like अगर हम फॉलो करें अपने पर्सपेक्टिव को, तो इसका मतलब है अगर कांजी से बनाए तो. So like ratio nichi niju nichi ni wa kanryo dekiru mitoshi desu ga, it seems like it will be completed by the 20th of the next week. अगले हफ्ते की 20 तारीख तक ये हो जाएगा, ऐसा लगता है. ओमाची इतादाकिमासु देशोउका. It's like can you please, or like could you please wait. So it's very interesting. यहाँ पे omachi is like to wait. Let me show you. Like, do you know the matsu is to wait, and the machimas इसका होता है so inflection. machimas, ठीक है, to wait.
ओमाची इज लाइक ओके, इसमें है ही नहीं. ओमाची इज लाइक टू वेट. माची वेटिंग, वेट माची. ओ हमने लगाया उसको पोलाइट बनाने के लिए बिकॉज वी आर राइटिंग बिजनेस जापानीज. सो ओमाची इतादाकिमास. इतादाकिमास इज द पोटेंशियल फॉर्म ऑफ वर्ब इतादाकु, जिसका जो कि खिंजोगो होता है मोराओ वर्ब का, जिसका मतलब होता है, जिसका मतलब ये होता है इतादाकु. इतादाकु का मीनिंग होता है टू रिसीव, टू गेट, टू एक्सेप्ट. खिंजोगो हम्बल वर्ब है ये खिंजोगो, टू रिसीव समथिंग. सो ओमाची इतादाकिमास देशोका इज अ वेरी पोलाइट वे टू से कि कुड यू प्लीज वेट. वाई शिमात्सु निजु निची वा कानरेओ देकिरु मितोशी देसु गा ओमाची इतादाकिमास देशोका. Could you please wait till the 20th of next week because we think तब तक काम हो जाएगा. नहीं तो योशिको ओनेगाई इताशिमासु. दिस इज द एंडिंग. दिस है ना, क्योंकि एंड करने के लाइक फर्स्ट लाइन द ग्रीटिंग फर्स्ट लाइन होता है उसे इत्सुमो ताहि ओसोई नात्ते ओरिमासु एंड सेकंड लाइन इज नहीं तो योशिको ओनेगाई इताशिमासु. ये दो लाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये दोनों लिखनी ही लिखनी है. और उसको लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं. रेड मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट. अब मेल को ख़त्म करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. वील गो थ्रू ईच एंड एवरी वे टू एंडिंग ए मेल इन आवर अपकमिंग वीडियोज़. आई टेल यू बहुत सारे वेज जो अलग सिचुएशन के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे, लाइक स्टार्ट तो सेम ही होता है हमेशा. इत्सुमो ओसोई नात्ते ओरिमासु, इत्सुमो ताहि नो ओसोई नात्ते ओरिमासु, या फिर एक होता है हीसो योरी ताहिन ओसोई नात्ते ओरिमासु, और लाइक इत्सुमो योरी ताहिन ओसोई नात्ते ओरिमासु. और एक और होता है फुदान कारा ताहिन ओसोई नात्ते ओरिमासु. तो डिफरेंट वेज राइट बट लिमिटेड है लाइक स्टार्ट करने की. ये तो ओसोई नात्ते ओरिमासु फिक्स है, बट एंडिंग अलग अलग होते हैं. लाइक यहाँ पे है नानी दोजो योरोशिकु ओनेगाई इताशिमासु. एक होता है कोंगो तोमो नानी तोजो योरोशिकु ओनेगाई इताशिमासु, या फिर कोंगो तोमो नानी तोजो योरोशिकु ओनेगाई मोशिआगेमासु, या फिर कोंगो तोमो नानी तोजो योरोशिकु ओनेगाई साशिआगेमासु. तो लाइक इताशिमास और मोशिआगेमास और साशिआगेमास आर डिफरेंट वर्ब्स और डिफरेंट पैटर्न. और होता है कि कोंगो तोमो ओही कीताते नो होदो दोजो योरोशिकु ओनेगाई इताशिमासु. लाइक वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कंटिन्यू सपोर्ट. लाइक हम लाइक इफ़ यू वांट टू से कि अगर हम लाइक अगर आप कस्टमर को लिख रहे हो और आपको कहना है कि हम आपसे हमेशा या आगे भी इन फ्यूचर टू, अभी से लेकर फ्यूचर में भी आपसे बिजनेस बनाए रखना चाहते हैं या कनेक्शन बनाए रखना चाहते हैं, या हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ बी कनेक्टेड और प्लीज़ कंटिन्यू गिविंग योर सपोर्ट टू अस. तो उसके लिए अलग पैटर्न्स होते हैं लिखने के लिए. एंड आई थिंक आई हैव दोज पैटर्न्स एंड लिख के रखे हुए हैं. ये सारे पैटर्न्स हैं, ठीक है. सो आई टीच यू एवरी पैटर्न लेटर. सो नाइन तो योरोशिकु ओनेगाई इताशिमासु यहाँ पे सिंपल सा है. नानी तोजो का मतलब होता है बैग ऑफ यू, लाइक बैग ऑफ यू. बट इसका यहाँ पे इसका मतलब होगा कि फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. नानी तोजो, दिस इज द कांजी ऑफ नानी तोजो. प्लीज काइंडली आई बैग ऑफ यू, इफ इट प्लीजेज यू, हम्बल बाय ऑल मीन्स विदाउट फेल. नानी तोजो. सो लाइक नानी तोजो योरोशिकु ओनेगाई इताशिमासु. ये सब लिखने के बाद आपको एक्सप्लेन आपको लिखना है लाइक अपने बारे में. लाइक खाबुशी गाइशा, खाबुशी गाइशा का मतलब होता है प्राइवेट कंपनी. जैसे इंडिया में हम लिखते हैं प्राइवेट लिमिटेड, जिससे प्राइवेट लिमिटेड, और ये कंपनी नाम के, जैसे इंडिया में कंपनी के नाम के पीछे लिखा जाता है, जापानीज में कंपनी के नाम के आगे लिखा जाता है. लाइक खाबुशी की कंपनी नाम से पहले लिखेंगे खाबुशी गाइशा या यामादा सोजी. खाबुशी उसके इसकी कंपनी का नाम है ये यामादा सोजी, दैट्स वाई इसलिए लिखा था यामादा सोजी नो यामादा दिस. सो खाबुशी गाइशा यामादा सोजी. Eigyobu is sales department. Eigyo is sales. Bu is department. Eigyobu department. So Kabushiki Gaisha Yamada Soji Eigyo departments. अब ये जिसने मेल लिखा है उसका पूरा हिसाब किताब सब डेटा यहाँ पे आएगा एंडिंग. सो ओके, देन यामादा थारो, ये इसका नाम इसलिए ये यामादा थारो. एंड देन यू हैव टू राइट योर नेम इन काताकाना ट्यू, क्योंकि सबको आपका नाम कांजी नहीं आती. सो यू हैव टू राइट
इसलिए प्रॉपर मैनर ही लिखने का कि आपको लिखना है अपने नाम का काताकाना, ठीक है। देन जिप कोड वगैरह ये होएगा या ओके। देन ओसाकफ मारू मारू, ये पूरा एड्रेस जो भी आपका है कंपनी का एड्रेस। देन टेलीफोन नंबर या टेलीफोन, ये चुकसेत्सु मतलब डायरेक्ट टेलीफोन नंबर। ये दाइहो इज लाइक representative of company, like this chokusetsu number is यामादा थारो का, और दाइहो होता है रिप्रेजेंटेटिव, ये नंबर रिप्रेजेंटेटिव का। देन फैक्ट एंड सो अगर इसको अगेन हम एक बार और से गो थ्रू हो, लाइक उसको पढ़े ठीक से। सो खेमे chosa bunseki no matome ga okurete imasu, marumaru kaisha kurita sama itsumo osewa ni natte orimasu,山田商事の山田です。今週末が締め切るとなっている調査分析のまとめですが、集計作業が遅れております。現在、作業者を増員して全力で進めておりますが、期日までに全てを完成させるのは難しい見通しです。大変申し訳ありません。来週20日には完了できる見通しですが、お待ちいただけますでしょうか。何卒よろしくお願いいたします。株式会社山田商事営業部山田太郎。ओके, सो दिस वाज द सैम्पल बिजनेस ईमेल। अभी हम खुद से बहुत सारे सैम्पल ईमेल्स लिखेंगे। सो दिस वाज द सैम्पल ईमेल। अलग अलग सब्जेक्ट्स पे अलग अलग मेल वी विल ट्राई टू राइट, जिससे कि वो प्रैक्टिस होएगी ईमेल्स लिखने की। एंड उससे पहले हमको ये लाइक ओरिमास या फिर जो अलग अलग वर्ब्स होते हैं, लाइक अलग अलग पैटर्न्स, वो सब बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को। सो आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन फर्दर वीडियोज़। सो या नेक्स्ट चीज़ व्हाट इज सोंखेगो एंड खेगो। सो बेसिकली अगर इसको फटाफट से पढ़ें तो लाइक खेगो सोंखेगो तो खेगो तो लाइक थोवा इज टू लाइक मे बी N2 N1 का है ग्रामर, जिसको हम यूज़ लाइक N3 ग्रामर शायद N3 या इस N3। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का मतलब उस चीज़ को एक्सप्लेन करने का, लाइक जब भी किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना हो तो जिस चीज़ को एक्सप्लेन करना हो उसको थोवा से लिखते हैं पहले। सो सोंखेगो तो खिंजोगो थोवा, अब उसका एक्सप्लेन आगे सो सोंखेगो मे हुए नो हितो नो उगोकी ओ अरावासु तोकी सुकाओ कोतोबा देसु। मे हुए नो हितो होता है सीनियर, उगोकी होता है एक्शन, उगोकी इज होता है एक्शन, अरावासु होता है टू रिप्रेजेंट समथिंग, टू टेल अबाउट समथिंग। अरावासु तोकी मे हुनो सीनियर के एक्शंस को बताते वक्त सुकाओ कोतोबा। तो सोंखेगो इज द वर्ड्स हमको यूज तब करना है जब हम किसी सीनियर के बारे में बात कर रहे होते हैं, उसने जो किया एक्शन उसको लेके। जब हम किसी सीनियर के या कस्टमर के करे हुए एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक ठीक है यू, तो जब जो वर्ब यूज करते हैं दैट इज सोंखेगो। और खिंजोगो होता है मे हुए नो हितो नि ताइशिते जिबोन कारा यात्तेことについて使う言葉です。इसका मतलब होता है सीनियर के लिए मे हुए नो हितो नि ताइशिते टुवर्ड्स द सीनियर पर्सन जिबोन गा यात्ते इरुこと, खुद से की गई चीज़ के बारे में जब हम बताते हैं निसुइते अराउस्टो की सो कोतोबा देसु। जब हम सीनियर के लिए या सीनियर की तरफ, सीनियर के लिए जब हम खुद से कुछ करते हैं या कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं तो वी यूज खिंजोगो। दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ सोंखेगो एंड खिंजोगो। अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है, वो कंफ्यूज कर सकती है, बट द सिंपलेस्ट वन इज लाइक व्हेन आप बात कर रहे हैं सीनियर के या कस्टमर के एक्शन के बारे में या उसने जो किया उस चीज़ के बारे में, देन यू हैव टू यूज सोंखेगो। और जब आप बात कर रहे हैं आपने जो किया कस्टमर या सीनियर के लिए तो यूज़ करनी है खिंजोगो। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको बताना है कि लाइक आपके बॉस ने क्या कहा, लाइक आप किसी को बता रहे हो कि बॉस ने ये कहा या कस्टमर ने ये कहा, तो क्योंकि बॉस ने कहा या कस्टमर ने कहा तो उनके एक्शन को के बारे में बात करें तो वी यूज सोंखेगो। अगर हम किसी को बता रहे हैं कि हमने कस्टमर को ये कहा या हमने बॉस को ये कहा, तो हम बात कर रहे हैं हमारे एक्शन को जो हमने किया था बॉस या कस्टमर के लिए। सो वी हैव टू यूज खिंजोगो। अब सोंखेगो और खिंजोगो में ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ वर्ब्स होते हैं अलग अलग। सो लाइक एवरी वर्ब यू यूज इन थेने, एक होती है थेनेगो। थेनेगो होता है जो कि आप डेली यूज करते हो, लाइक मास और दिस फॉर्म, दैट इज नॉर्मल बट पोलाइट जापानीज। सो इन थेनेगो एक वर्ब होती है टू से, यू टू से, बट उसका जो सोंखेगो होता है वो तो ओशारु टू से। सोंखेगो एंड खिंजोगो आर द टाइप ऑफ द वर्ब्स
जो कि आपको याद रखने हैं हर एक वर्ब की रिप्लेसमेंट में। लाइक यू का जो सोंखी को रिप्लेसमेंट दैट इज ओशारू, और यू का यू इट्स कुछ यू या यू वट एवर यू कॉल इट, बट इट्स यू बेसिकली। सो यू का जो खेंजोगो रिप्लेसमेंट है दैट इज मोशियागेरू टू से, एंड यू का जो सोंखीगो रिप्लेसमेंट दैट इज ओशारू टू से। अगर आप इसको डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो वहाँ भी ये लिखा हुआ होगा, आई एम श्योर। ओशारू, यस, इट्स सोंखीगो respectful, ओशारू। If you will use this मोशियागेरू खेंजोगो टू से, मोशियागेरू खेंजोगो। सो खेंजोगो कब यूज करना है? जब हम अपने किए हुए एक्शन के बारे में बात करते हैं। एक्शन फॉर सीनियर पर्सन और लाइक कस्टमर, ओके। सोंखे को अब यूज करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्शन ऑफ द सीनियर पर्सन। जब हम बात करते हैं सीनियर एक्शन के बारे में, सोंखे को ओशारू। सो लाइक हमको कहना है कि शाचो ने कहा, शाचो लाइक बॉस इन जापानीज, बॉस। तो बॉस ने कुछ कहा तो शाचो का ओशात्ता। ओशात्ता इज द पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ओशारू। सो इन्फ्लेक्शन इसमें है ही नहीं, ओके। ओशारू इज लाइक आर स्पेल वर्ब, इसलिए ओशात्ता। शाचो का ओशात्ता यो नी, जैसा शाचो ने कहा था, या फिर जैसा हमने शाचो को कहा था। तो शाचो नी मोशियागेता यो नी, जैसा कि हमने शाचो को कहा तो शाचो नी मोशियागेता। मोशियागेता के भी हमने कहा तो हमारे के करे हुए एक्शन के बारे में बात करें। सो वी हैव टू यूज खेंजोगो, एंड टू द वर्ब रिप्लेसमेंट ऑफ खेंजोगो यू इन खेंजोगो इज मोशियागेरू, एंड द वर्ब रिप्लेसमेंट ऑफ यू इन सोंखीगो इज ओशारू। सो ओके, दिस वाज अबाउट सोंखीगो एंड खेंजोगो। इन फर्दर वीडियोस में बहुत सारे बिजनेस जापानीज पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, सैम्पल ईमेल्स लिखेंगे, छोटी छोटी चीज़ें जो होती है लाइक नी नारू, थो नारू बन जाता है, इमास ओडिमास बन जाता है, देश गोजाइमास बन जाता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। एंड व्हाट इज़ द पैटर्न्स वी, बिकॉज बिजनेस जापानीज में बहुत सारे पैटर्न्स है अलग अलग सिचुएशंस के लिए। हाउ टू मेक रिक्वेस्ट और हाउ टू आस्क फॉर फेवर, हाउ टू डू फेवर। और आपको रिक्वेस्ट करनी तो कैसे करनी है, आपको सामने से कोई परमिशन मांगनी तो कैसे मांगनी, इसके बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। सो दैट इज ऑल बिजनेस जापानीज। सो ये सिर्फ बेसिकली इंट्रोडक्शन है कि मेल ऐसे लिखा जाता है, ये इसका मतलब है। मैंने हर लाइन एक्सप्लेन किया, आई होप अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपको रीजंस भी पता है आपकी ईमास ओडिमास क्यों बना, नीनारू थोनारू क्यों बना, बिकॉज इट्स जस्ट ए रिप्लेसमेंट। स्पोकन जापानीज नीनारू, रिटन जापानीज थोनारू, दैट्स इट। इससे बेटर एक्सप्रेशन कुछ हो नहीं सकता। मोशिवा के आड़ीमासेन, मोशिवा के गोजाइमासेन, एक और होता है मोशिवा के नाइन देश, दैट इज इससे ज़्यादा कम पोलाइट। सो हम बात करेंगे लाइक आई विल ड्रॉ ए चार्ट जहाँ पे हम पोलाइटनेस के लेवल पे मैं लिखूंगा चीज़ों को, लाइक मोशिवा के गोजाइमासेन सबसे ज़्यादा पोलाइट, उसके बाद मोशिवा के आड़ीमासेन उससे कम पोलाइट, देन मोशिवा के नाइन देश उससे कम पोलाइट। सो उस चार्ट को यूज़ करके यू कैन डिसाइड क्या यूज़ करना है आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ओके। सो या क्योंこの動画をご覧くださって誠にありがとうございます。Thank you for watching this video today, and この動画を気に入っていただければチャンネル登録お願いいたします。Usually if you like this video, please subscribe and like this video. Okay, thank you, bye bye. じゃあ次の動画でまた会いましょう。はい、バイバイ。